পৰা নতুন ৰূপত ৰাহুল গান্ধীয়ে এবাৰ যেহেতু মন্তব্য কৰি কৈছিল যে এবাৰ নতুন ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাহুল গান্ধীক আৰু এবাৰ ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হৈছে হনুমান মন্দিৰত আৰতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটো ৰায়বেৰেলীত উপস্থিত হৈ লোকসকলৰ সমস্যাৰ বুজ লোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধীক মণিপুৰৰ পাছতে ৰাহুল গান্ধী এবাৰ উপস্থিত হ'ল ৰায়বেৰেলীত আমি লৈ আছো বিশেষ খবৰ চৰকাৰকো এবাৰ আক্ৰমণাত্মকভাৱে ৰাহুল গান্ধীয়ে সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সদনত মোদী চৰকাৰক ৰাহুল গান্ধীয়ে বিভিন্ন বিষয়ত উভতি ধৰিছে আৰু বিৰোধী নেতা হোৱাৰ পাছৰে পৰা বা বিৰোধী দলপতি হোৱাৰ পাছৰে পৰা নতুন ৰূপত ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী নেতাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ এক্টিভ মোড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সমস্যাৰ বুজ লৈছে ৰাহুল গান্ধীয়ে সততে বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ এবাৰ এক্টিভ মোড দেখিবলৈ পোৱা গৈছে হনুমান মন্দিৰত আৰতি কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ জনতাৰ কাষত উপস্থিত হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধী মণিপুৰৰ পাছত নিজ সমষ্টি ৰায়বেৰেলীত উপস্থিত হৈছে ৰাহুল গান্ধী আৰু সদনতো এইবাৰ বিৰোধীক আক্ৰমণাত্মকভাৱে ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিছে সমালোচনা আৰু পূৰ্বতকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ এক্টিভ মোড চৰকাৰক কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে এইবাৰ ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু বিৰোধী নেতা হোৱাৰ পাছৰে পৰা ৰাহুল গান্ধীৰ নতুন ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বিজেপিৰ দুৰ্গ গুজৰাটও ইতিমধ্যে ৰাহুল গান্ধীয়ে ভ্ৰমণ কৰিছে বিৰোধী নেতা হোৱাৰ পাছতে প্ৰথমটো ভ্ৰমণ আছিলে ৰাহুল গান্ধীৰ আৰু প্ৰথমটো ভ্ৰমণতে গুজৰাট তথা বিজেপিৰ দুৰ্গ গুজৰাটত উপস্থিত হৈছিল ৰাহুল গান্ধী গুজৰাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে মোদী চৰকাৰক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে কেইবাটাও বিষয়ত চৰকাৰক যেহেতু সদনতো ৰাহুল গান্ধীয়ে আক্ৰমণাত্মক সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল আৰু গুজৰাটত ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হৈ গুজৰাটত এবাৰ বিজেপি পৰাস্ত হ'ব বুলি ৰাহুল গান্ধীয়ে মন্তব্য কৰিছে আৰু সদনত ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱাৰ সদনত ৰাহুল গান্ধীয়ে বাৰে বাৰে গুজৰাটত এবাৰ বিজেপি পৰাস্ত হ'ব লিখি ৰাখক বুলি মন্তব্য কৰি আহিছে আৰু আমি ৰায়বেৰেলীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো এনেদৰে হনুমান মন্দিৰত আৰতি কৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता मगर कोई नहीं चाहता मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो आगे बैठी है मैं बता रहा हूं আমি ৰায়বেৰেলীৰ দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক ৰায়বেৰেলীত ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে এনেদৰে হনুমান মন্দিৰত আৰতি কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী নেতা ৰাহুল গান্ধী এবাৰ দায়িত্ব লোৱাৰ পাছৰে পৰা এক্টিভ ৰূপত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাহুল গান্ধীক আৰু ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰোধী নেতা হোৱাৰ পাছৰে পৰা প্ৰথমটো ভ্ৰমণ আছিল গুজৰাট ভ্ৰমণ গুজৰাটত উপস্থিত হৈ মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীক বিজেপিৰ কাৰ্যকৰ্তাই বেয়া পায় বুলি মন্তব্য কৰিছিল মোদী কংগ্ৰেছত থকা হলে কেতিয়াবা আঁতৰি গ'লহেঁতেন বুলি মন্তব্য কৰিছিল ভগৱানৰ সৈতে ডাইৰেক্ট কানেকশ্যন আছে বুলি সদনতো ৰাহুল গান্ধীয়ে এই মন্তব্য কৰিছিল সদনৰ আমি কেতবোৰ দৃশ্য আছে সদনৰ দৃশ্য আপোনালোকক দেখুৱাম बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं उनकी पूरी टीम बैठी है और आपको गुजरात में हराएंगे इस बार आप लिख के ले लो आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. সদনত মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল ৰাহুল গান্ধী বিৰোধী নেতা হোৱাৰ পাছৰে পৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে
মোদী চৰকাৰে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আজি ৰায়বেৰেলীত উপস্থিত হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে হনুমান মন্দিৰতো পূজা অৰ্চনা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গ'ল। আৰু ৰাহুল গান্ধীয়ে মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কি কৈছিল মন্তব্য শুনক। গুজৰাটত উপস্থিত হোৱাৰ পাছতে যিহেতু ৰাহুল গান্ধী আক্ৰমণাত্মকভাৱে মোদী চৰকাৰক সমালোচনা কৰিছিল, ৰাহুল গান্ধীৰ পূৰ্বৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছো। बीजेपी में नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनकी पूरी टीम बैठी है उनके सामने। मैं आपको इंटरनल बात बता रहा हूं, उनमें से कोई नरेंद्र मोदी को नहीं चाहता, मगर कोई नहीं चाहता। मतलब पूरी लीडरशिप टीम देख लो, आगे बैठी है। मैं बता रहा हूं आपको, अंदर की बात बता रहा हूं, इनसाइड ट्रैक दे रहा हूं। कोई नहीं चाहता, मगर दम नहीं है, डरते हैं। अगर नरेंद्र मोदी जैसा लीडर कांग्रेस पार्टी में होता, पूरी कांग्रेस पार्टी खड़े हो जाती, कहती है नहीं हम डरते नहीं है, हटो यहां से। मगर उनकी पार्टी में दम ही नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं में दम नहीं है। आप देखो ना, एक आदमी खड़ा है वहां पे, सबकी हवा निकल गई। मतलब कार्यकर्ताओं की हवा निकल गई, आरएसएस की हवा निकल गई, सारे लीडर्स की हवा निकल गई। सच बोल रहा हूं ना। और हमारे मतलब छोटा कार्यकर्ता होता है, टाइगर होता है, आता है कांग्रेस प्रेसिडेंट के सामने, आता है राहुल गांधी के सामने, आता है, कहता है भैया मेरे दिल में ये बात है, आपको ना लगे मैं तो बोल रहा हूं। तो ये है कांग्रेस पार्टी। पार्लियामेंट में मैं यहां बैठता हूं, यहां पे अयोध्या के एमपी बैठते हैं, देखा आपने उनका चेहरा, इंडिया गठबंधन के हैं, है ना। मैंने उनसे पूछा कि भैया आप मुझे एक बात समझाओ, ये बीजेपी ने अपनी पूरी पॉलिटिक्स अयोध्या की पॉलिटिक्स थी। चुनाव के पहले इन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया, राम भगवान को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, मीडिया में फैला दिया। मैंने उनसे पूछा भैया एक बात बताओ, ये हुआ क्या कि उन्होंने राम मंदिर का इनॉग्रेशन किया और इंडिया गठबंधन अयोध्या में चुनाव जीत गया, ये हुआ क्या? और मुझे जवाब उन्होंने दिया, मैं ये जवाब आपको देना चाहता हूं। उन्होंने कहा राहुल जी, मुझे पता लग गया था, तकरीबन 6 महीने पहले मुझे पता लग गया था कि मैं अयोध्या से लड़ूंगा। और जिस दिन मुझे पता लगा, उस दिन मुझे यह भी मालूम था कि मैं सिर्फ लड़ूंगा नहीं, इंडिया गठबंधन अयोध्या से जीतने जा रहा है। मैंने कहा कि आपको कैसे मालूम? पूरी देश में, मीडिया में, सब जगह राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ, तो आपको कैसे मालूम? उन्होंने कहा कि राहुल जी, जब मैं अयोध्या में लोगों से बात करता था, तो मुझे अयोध्या के लोग सिर्फ 2-3 चीजें कहते थे। पहली बात कहते थे कि अयोध्या में मंदिर बनाने के लिए, क्लीन अप करने के लिए बहुत सारे लोगों से जमीन ली गई, बहुत सारे लोगों की दुकानें, घर तोड़े गए, और आज तक जिन लोगों के घर छीने गए, तोड़े गए, दुकानें तोड़ी गई, आज तक उनको नरेंद्र मोदी जी ने कॉम्पनसेशन नहीं दिया। पहली बात, जहां भी वो जाता था लोग उनसे कहते थे हमारी जमीन छीनी गई, सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना, बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात, राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया
जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए, और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। मैं आपसे यहां कहने आया हूं, इन्होंने आपके ऑफिस पे आपके कार्यकर्ताओं पर आक्रमण किया है। अब आपको डरना नहीं है, डराना नहीं है। इन्होंने हमारे ऑफिस पे धमकाकर, ऑफिस को तोड़कर हमें चैलेंज दिया है। चैलेंज क्या है? गुजरात के चुनाव में मैं आपको बता रहा हूं, हम सब मिलकर इनको गुजरात में हराने जा रहे हैं। जो हमने कहा, और लिख के ले लो, कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी, और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है, वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। कौन हराएगा? हमारे लीडर हराएंगे, हमारे बब्बर शेर टाइगर हराएंगे। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया